ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्तवत्सल प्रधान आज महाभारत उपर आधारित परम वीर श्रेष्ठ गदाधारी भीमसेन उपरे सुंदर कहानी मान रही। यह आमर पंचम भाग आसतु जानिबा। भीमसेनकर सबु दुई जन पत्नी रही द्रौपदी माता हिडिंबा माता पुणी दुई संतान द्रौपदी माता ठारू श्रुतसेन जन्मग्रहण करते अश्वत्थामा बद्ध करते एसबु कथा आपण मैंने जानी। हिडिंबार सुपुत्र घटौकच रही पुणी दुईथर वन को गमन करते जतुगृह अग्नि संयोग करागला। कुंती माता तांकर 5 पुत्र से गृह मध्य रही खणातक सुडंग करते जीवन रक्षा करते। से समय भीमसेन वन को गमन करते द्वितीय थर अर्थात द्रौपदी माता सहित 5 भाई वन को द्वितीय थर गमन करते। एसबु कथा आपण मैंने जानी। पशा खेल दुई थर होता। प्रथम थर कौन घटला युधिष्ठिर सबकि हराई वस्त्र हलन प्रक्रिया आरंभ हो गला। पुणी विदुर कथार गंगापुत्र भीष्म कथार जहाँ किछि धर्मराज युधिष्ठिर हरई हासिल करते। पुणी तम गुणधारी दुष्ट शंकुनी दुर्योधन मतरे पुनर्बार पशा खेल होता। शर्त थिला जी हार 12 वर्ष वन को गमन कर गोटे वर्ष अज्ञातवास जदि सफलता हासिल करू पुनर्बार 12 वर्ष वन को जीवे गोटे वर्ष अज्ञातवास रे। अर्थात दुर्योधन चिंतन करुले मु एभली कार्य करी गुप्तचर संयोग करी निश्चित भाव में जो स्थान रे पांडव रहिबे ना खोजी बाहर करी सदा दिन सर्वदा एमाने वन रे रहिबे मु राजसुख हासिल करी राज सिंहासन हासिल करी सुखरे आनंदरे समय अतिबाहित करी। कृष्णर माया गोचर ब्रह्मंती ब्रह्मा शिवसुर भगवान को माया समस्ते मोहित हुंती। दुर्योधन मध्य मोहित हो गले। भगवान कौन करुचंती पापर कलश पूर्ण घटू कंटा को कंटा बाहर करवा परी निश्चित भाव संपूर्ण कौरव वंश को मु विनाश करी। धर्म अधर्म विषय भीमसेन भल भाव जानी पाप पुण्य विषय जानी किए देवता किए सत्व गुणधारी किए असुर किए तम गुण को धारण करिसंती ए सबू भल भाव जानी। परम ज्ञानी यथेष्ट शक्ति हासिल करते। पुणी कृष्ण ठारे भगवान ठारे भाव भक्ति रखुले जप करिबा तप करिबा सत्व गुण को धारण करिबा यही सब कार्य लिप्त रहते अंतर्मुखी होते। दुर्योधन कौन चिंतन कले सुखर रही आनंद रही जीवन को उपभोग करी बाह्य दृष्टि सुख हासिल करने चेष्टा करुले पाइबे कि भगवान जहाँ को कृपा करती से जीव मुक्ति पाई थाए। सही
ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶଧାରୀ ପାଣ୍ଡବ ରହିଥିଲେ। ଭୀମସେନ ଗଦାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଗଦା ନା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ରହୁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସଦାବେଳେ ଗୁପ୍ତଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି 5 ଭାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବାୟୁବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଉଥିଲା। ପୁଣି ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ସୌରେନ୍ଦ୍ରୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ରହିଥିଲେ ନା, ସେହି ରୂପରେ ରହୁଥିଲେ। ବଲ୍ଲଭ ପଣ୍ଡା ଋଷିଆ ରୂପରେ ଭୀମସେନ ରହୁଥିଲେ। କଙ୍କ ରୂପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରହିଥିଲେ। ବୃହନଳା ରୂପରେ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ରହିଥିଲେ। ଗୋରକ୍ଷକ ଅଶ୍ୱରକ୍ଷକ ଭାବରେ ସହଦେବ ନକୁଳ ରହିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅବିବାହିତ ରହିବି। ଯିଏ ଏହି ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନା। ସିଂହାସନର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବହନ କରିବି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସମରରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବଧ କରିବି। ଯଦି ଅସଫଳ ହୁଏ ମଦ୍ୟପାନ କରିବି ନାହିଁ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବି ନାହିଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଛାଡ଼ିବେ କି? କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣକୁ ବଧ କରିବି। ଯଦି ନ କରେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପତ୍ନୀ ସହିତ ରମଣ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କିଛି ଶପଥ ରହିଥିଲା। ଆଉ 2ଟି ଶପଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର 6-7 ଜଣ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ମରିଯାଉଥିଲେ, ଅପହରଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସଦାବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏଭଳି ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ କେହି ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତୁବନ୍ଧ, ସେତୁ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତଥାପି ଅପହରଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଯମପୁରକୁ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପାଇନଥିଲେ। ଶପଥ ଭଗ୍ନ ହେଲା ନା। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ? ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବି ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ନର ନାରାୟଣ ଉଭୟେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି? ଶେଷରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ସେଇ ଦମ୍ପତିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଶପଥ ରହିଛି। ପୁଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କୁ ମୁଁ ବଧ ନ କରେ, ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବି। ଏଇଭଳି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଭୀମସେନ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି, କେହି ବି ଏଭଳି ଇତିହାସରେ ଶପଥ ନେଇନଥିବେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଶପଥ ନେବେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର 100 ଭାଇଙ୍କୁ ବଧ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ବଧ ନ କରେ, ମୁଁ ପୂର୍ବଜକୁ ମୋର ମୁଖ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଶପଥ ଭଗ୍ନ କଲେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଏ ସଂସାରେ ଅଛି ଛନ୍ଦି, ଭକତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି, ସମରରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କ'ଣ କଲେ? ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି।
पुणी संक्षेप कहवा अनेक कहानी रही किचकबद्ध प्रसंग रही सही कृष्णापति याज्ञसेनी प्रति द्रौपदी माता प्रति किचक प्रेम संपर्क आरंभ करते रूपरे मोहित हो गले ये मोर पत्नी हो हासिल करने चेष्टा कले सभारे असफल कले गाल चटकाण मारे ना शक्त चापुड़ा मारी न्याय पाइबा आशारे सभारे उपस्थित जाहिर कले विराट राजा न्याय प्रदान कर नथिले कहीं शला भेणीर प्रसंग किचक परम वीर थिले ना तांकु किए बा दंड देबे भीमसेन से गृह निकटरे पांचालींकर स्वर शुणिले कांदिबा स्वर शुणिले ना भयंकर भाव में क्रोधान्वित हो गले ठीक यही समय दुर्योधन जो कौशल अवलंबन करिसंती अज्ञातवास भग्न करी ये सब कथा युधिष्ठिर महाराज भल भाव जानी जदि भीम किछि एपट सेपट करती अज्ञात बासरे रही ना नियम भग्न हम पुणी 12 वर्ष बण को जीवे भीमसेन चिंतन करुले मु किचक को उचित दंड देवी क्रोधान्वित होते धर्मराज युधिष्ठिर तांकर भाई विषय जानी ना कौन कले अरे भीम कौन पाई राज दरबार मध्य प्रवेश करुँच किसी भी अघटन करिपारती कौन कले गुप्त भाव में भीमसेन को साक्षात कले कौन कौन पाई दरबार में प्रवेश करुच मु रही मु समाधान करी जाओ भीमसेन कहते ना मु दुष्ट को दंड देवी से समय सुंदर भाव में कहते जदि सामान्य विघ्न घटे ना पुणी 12 वर्ष बण को जीव जो वृक्ष आश्रय देउची छाई प्रदान करुची तार प्रत्येक पत्र को भल पाइबा दरकार विराट राजा आमको आश्रय देइचंती ना तेणु तांकर शालक जदि बा कुकर्म करुचंती तथापि क्षमा दबा दरकार ये सब कही भीम को दूरे देले तापर कौन घटिब द्रौपदी माता न्याय पाई नथिले राति कौन करेंगे भीमसेन निकट को आसिले दुख प्रकाश कले कांदिले बा श्रेष्ठ गदाधारी भल भाव में शयन करिसंती अति आनंद रे सुख रे शयन करुच तुमर कौन जासे से किचक मते अपमान करिसंती निंदा करिसंती या पूर्वर दुशासन वस्त्र हरण करते तुमर किछि भी फरक पड़े ना ये भाव में कही कांदिले भीमसेन कौन कहे पवनकर अंश विशेष ना अरे मु तो दंड देवाई गमन करुली भाई मते बारण कले भाई जदि बारण कर न थाते मु किचक को बध करी थांती द्रौपदी माता कौन कहे हाँ तुमर भाई पशा खेलू निर्वृत्ति रही ना पशा खेल को दमन करें ना मुहित हो आउ सब किछि बारण करेंगे ठीक अच्छी मु शपथ करुच्ची आसंता काली जदि किचक सूर्योदय देखिब मु सूर्यास्त देखी ना जिते बड़े यही भाव में द्रौपदी माता कहले भीमसेन छाड़े कि जाओ छलना कर रोषेशाला निकटरे किचक को आनिब मु नारी बेश रही तुमर वस्त्र परिधान करी तुम्हें यही स्थान को आनिब लुचिजीव मु निश्चित भाव में बध करी कौन घटब छलना आरंभ कले ना नारीर माया ईश्वर को अगोचर यही मूर्ख किचक किभली भाव में जान आसिले प्रेम गीत गायन कले मु तुमको विशेष भाव में भल पाए किंतु मोर पतिदेव बारण करुँच गोटे काम करंतु चलंतु मो सहित चलंतु
मोर पतिदेव को उचित दंड देव पुणी आज राति मु तुम सहित समय अतिबाहित करने को चाहूँगी एभली भाव कथोपकथन कले जे मुई तो होगले समस्त शर्त कीचक राजी होगले से द्रौपदी माता क्यों स्थान को नेबे भीम निकट को नेले भीमसेन शाढ़ी पिंधि अति मात्रा खुशी होगले कथोपकथन आरंभ होगला भयंकर क्रोधान्वित होगले भीमसेन गदा धरिले प्रबल मात्रा माड़ आरंभ होगला समर आरंभ होगला सेपटे अर्जुन बुलहनला वेश धारण कर वाद्य मृदंग अति जोर रे बजाउथिले केही भी शब्द न शुणु एभली भाव में भीम समर कले जे कीचकों को बध करदेले यही खबरटी दुर्योधन जानीगले जे कीचकंकर बध होईची महारथी कर्ण सुंदर भाव कहते कीचक बध हेबा असंभव 6-7 जन वीर परम वीर ही कीचकों को बध करि परिबे पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य मु कर्ण दुर्योधन बलराम श्रीकृष्ण एवं भीमसेन आमे 6 जन तो स्थान रहीचे भगवान नियम करिसंती अस्त्र प्रयोग करिवे नहीं बलराम तीर्थ भ्रमण करती से कौन पाई बध करिवे मित्र तुम्हें तो स्थान रहीच मु रही गुरु द्रोणाचार्य स्थान रही पितामह भीष्म स्थान रही हाँ भीमसेन ही बध कर दुर्योधन खुशी गले अज्ञातवास भग्न होगला किंतु कुर्वाचार्य द्रोणाचार्य विदुर पितामह भीष्म हिसाब कले ना कीचकबद्ध हवा पूर्वर अज्ञातवासर जो शर्त ना परिसमाप्ति घटी यही प्रसंग रही पुणी आपण मैंने जानी भीमसेन सदा बेले इच्छा प्रकाश करुले मु समर करी मु दुराचारी मान को बद्ध करी भगवान चिंता कले भीम भाया कौन पाई एभली चिंतन कर हाँ तुमर शपथ भग्न ठारू शांति प्रतिष्ठा शांतिर प्रसार घटिबा धर्मर प्रसार घटिबा महान कार्य अटे धर्म पाई शपथ भग्न हो किछि भी फरक पड़े ना जदि तुम्हें एभली युद्धर कामना सदा बेले मनरे रखिब ना इतिहास निंदा करिब तेणु एभली कार्य ठारू दूरेबा भल भविष्यत विषय कई भी जानी न थांती तेणु सदा बेले वर्तमान रे चलिबा दरकार चिंतन करिबा दरकार एभली प्रसंग रही पुणी अज्ञातवासर शर्त परिसमाप्ति घटी युधिष्ठिर महाराज कौन कहे हाँ आमको इंद्रप्रस्थ फेल दिंतु सर्वप्रथम ब्राह्मण देवता को पठागला से देवता असमान हेले पुणी पुनर्बार चिंतन कले क्या दूत रूप से पठाଯିव अर्जुन कहते भीम भाई की पठातु ना क्षीणकूपी निश्चित भाव दुर्योधन किसी भी एपट सेपट कथा कही पारती कटुवाक्य प्रयोग करी पारती भीम भाई क्रोधान्वित हो से स्थान में समर करी पारती तेणु भीम भाई को दूत भाव पठाइबा उचित न शेष कौन घटला युधिष्ठिर महाराज चिंतन कले ठीक अच्छे परम ब्रह्म श्रीकृष्ण दूत भाव शांति दूत भाव गमन करती भगवान गमन करते घुसुरी को पाचिला कदली विषना तम गुणधारी भल कथा शुणिबे कि दुष्ट धर्म पथरे चलिबे कि धर्मवाणी शुणिबे कि शुणी नथिले
कौन कले भगवान को बंदी करने चेष्टा करते। ए सबू प्रसंग रही आपण मैंने भल भाव जानी। पुणी भीमसेन को कहवा ना न रवा कुंजरे अस्वस्थमा हत। भगवान चिंतन करुचंती ना जदि धर्मपथरे आम चलवा ना पांडवंकर विजय हवा असंभव। अस्वस्थमा नामक गज रही भीम भाई को सुंदर भाव में श्रीकृष्ण कहते भीम भाई यही हाथीर नाम कौन, यही हाथी को बध कर दिंतु। अस्वस्थमा हत चित्कार कर जहाँ घटव मु बुझी। भीमसेन ताही कले गज को एभली भाव में शक्त प्रहार कले गजटी बहुत दूर में पड़गला। चित्कार कले मु अस्वस्थमा को मारी एभली भाव में भीमसेन चित्कार कले। भीमसेनकर कथा गुरु द्रोणाचार्य बुझे कि शिष्यर कथा गुरु जानती। शिष्यर केते शक्ति रही क्यों गुण धारण करती गुरु जानती। भीम कथा को विश्वास करि नथिले। कहाँ निकट को आसबे युधिष्ठिर धर्मराज थिले ना तांको निकट को आसिले। भगवान कर कथा रे युधिष्ठिर महाराज कौन कले नरवा कुंजरे गुंजरे अस्वस्थमा हत। पशु हो कि मनुष्य हो अस्वस्थमा किंतु हत। तापर कौन घटिला शस्त्र त्याग कले दुष्टदुम्न शिरच्छेदन कले। ये सबू प्रसंग रही। पुणी धर्मर रथ सारथी हूँ ज्ञान, ध्वजा हूँ वैराग्य, घोड़ा हूँ ऐश्वर्य, धनु हूँ तप, विद्या रूपक कवच। ये सबू पांडव धारण करते ना। द्रौपदी माता को विशेष भाव में हैरान करुले। भोजन प्रिय ना मोर यही खाद्य प्रस्तुति कर भक्षण करी भोजन ग्रहण करी सदा बेले कहते। पुणी पत्नी सेवा करेंगे ना। जितेबाला भीमसेन पाद सेवा करुले भीमसेन कौन करुले हिडिंबा कथा कहते। हिडिंबा मते बहुत भल पाती मोर सेवा जत्न विशेष भाव में नियंती बहुत भल पाती। जदि सामान्य त्रुटि करना पांचाली मु सत कहूँ मोर पत्नी हिडिंबा निकट को जीवी। पुणी कौन करुले अनुमति देउ नथिले पाद सेवा करूचंती तो करूँ जाओ विश्राम नेब रात्रि अधिका हो गलानी। भीमसेन कदापि कहते कौन घटव द्रौपदी माता अधिकांश राति अनिद्रा रोते। एसबू देखी युधिष्ठिर मन मन दुख करुले। भीमसेन को कहते भोजन को आयतर रख, क्रोध को आयतर रख, यही भाव में बुझाऊले। पुणी देखंतु से द्रोणाचार्य कौन करुले परीक्षा नेउथिले ना। वृक्षरे अद्भुतमय चढ़ई निर्माण कले। सर्वप्रथम कौरवों को कहले देख कौन देखुच वृक्षरे। से माने कहले आमे किछि देखि पारुना। चारि भाई कहले हाँ आमे गोटे चढ़ी डाल रे बसिला परी जना पड़ुची। अर्जुन कौन कहले मु चढ़ी भी देखि पारुची तार नेत्र मध्य तार चकु मध्य मु देखि पारुची। देखंतु सही परम वीर अर्जुन केते शक्ति केते ज्ञान हासिल करिसंती। ये सब कथा आपण माने जानिचंती। पुणे सही अर्जुन 5 वर्ष स्वर्ग को गमन करते। विभिन्न अस्त्र शस्त्र हासिल करते। उर्वशी अप्सरा ठारू अभिशाप पाइथिले। ये सब कथा आपण माने जानचंती।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଅନେକ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଛି। ଭାଇମାନେ କହିବେ ହଁ ହଁ କ'ଣ ହାସଲ କରିଛ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଏହାର ଚମତ୍କାରିତା କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବରେ ସଂଯୋଗ କଲେ ଆକାଶବାଣୀ ହୋଇଗଲା, ରେ ଦିତିକୃଷ୍ଣ, ରେ ପାର୍ଥ, ରେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ରେ ଗୁଡ଼ାକେଶ ଅର୍ଜୁନ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଏହା ଖେଳନା ନୁହଁ। ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ଘଟିବ। ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନକ୍ସା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭୀମ ଭାଇ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ନା, ସ୍ୱର୍ଗର ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନକୁଳକୁ ଦର୍ପଣ, ସହଦେବଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଖଚିତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଦୁଃଶାସନ ଅଳଙ୍କାର ବାହାର କରି ନେଇଥିଲେ ନା। ଅର୍ଜୁନକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, କ'ଣ କଲେ? ବିଭିନ୍ନ ମଣି ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ପାଇଥିଲେ ନା, ଏସବୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି। ବନବାସର ସମୟ, 5 ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି ନା, ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲେ, ସୁଲାପାନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ, ନିଶାସକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ରହିଥିଲେ ନା, ସେଇ କନ୍ୟାଟି ନିଜର ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଭଉଣୀକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କଟୁକଥା କହେ, ଅସଦାଚରଣ କରେ, ବାପା ଭାଇ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କି? କଦାପି ନୁହଁ। କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେପଟେ ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି। ମିତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଦୂତ କ'ଣ କଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ନା, ଚିନ୍ତନ କଲେ ମୁଁ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ଏହି ବନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଖବରଟି କହିଲେ। ଭୀମସେନ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ ଭାଇ, ସିଏ ଅନେକ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆତତାୟୀ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା, ଭୀମ ଭାଇକୁ ବିଷ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିବା, ଅନେକ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଲେ? ଭୀମସେନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ, ମିତ୍ର ହୋଇପାରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ରକ୍ଷା କରିବା। ଏହା ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଯାଅ ଅନୁଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରକ୍ଷା କର, ଏହା ଆମର ଆଦେଶ। ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯିବି। ଭାଇଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବେ ନା। ବେନି ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମ ଗଲେ। ସେଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜକୁମାର କ'ଣ କହିବେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଇ କନ୍ୟାର ପିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଭୀମସେନ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ଆମେମାନେ ପାଳନ କରିବୁ। ହଁ, ଇଏ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏହା ସତ୍ୟ, ତଥାପି ଆମର ଭାଇ
विपद समय भाई अन्य जन भाई को रक्षा करवा यह धर्म। आमे आमर धर्म पालन करुचे। कौन कले? दुर्योधन को मुक्त कराइले। ये सब प्रसंग रही। पुणी आउ गोटे प्रसंग रही। 13 दिन वन रे रही सही भीमसेन अर्जुन कौन कले? समर करवा, प्रतिशोध नवा। गांडी बदन को धारण कले। भीमसेन गदा धरिले। द्रौपदी माता मध्य प्रस्तुत हो गले। सही धर्मराज युधिष्ठिर आश्चर्य हो गले। ये कि बेश? आमे वन रे रहीचे ना, ये भली बेश धारण करवा उचित नुह भाई। आमे हस्तिनापुर उपर आक्रमण करवा, दुष्ट को दंड दबा। रे भीमसेन रे अर्जुन भूली गल कि 12 वर्ष वन रे रहिबा को पड़िबो, पुणी 1 वर्ष अज्ञातवास रही। ये सब नियम पालन करने दरकार। यही समय भीमसेन अर्जुन कहते भाई आपण जानी ना कि 13 दिन आज होगला। बेले बेले 13 दिन को 13 वर्ष रूप से गणना करा जाए। मुनि ऋषि माने मत दियंती, परम ज्ञानी साधु संत मत दियंती। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हाँ यह सत्य, विशेष कार्य गणना करा जाए, किंतु आक्रमण करवा, हासिल करवा ये सब क्षेत्र में व्यवहार करा जाए ना। ठीक अच्छे जदि तुम्हें माने समर करने गमन करुच जाइपार, मत त्याग कर, किंतु मु नीति आदर्श को बलिदान दे पारिबी नहीं। मु कुकर्म करिछि, जुआरे 4 भाई को पत्नी पांचाली को बाजिले लगाई जुआरे ना। मु पाप करिछि, प्रायश्चित मु निश्चित भाव में वन रे रही, एका रही, किंतु मु कदापि हस्तिनापुर को जीवी नहीं, शर्त भग्न करी नहीं। यही बड़ी कथा कहले। अर्जुन भीमसेन कौन कहे भाई आपण किभली भाव में चिंतन कले आपण को त्याग करी आमे कौन कार्य करूँ? त्याग करवा असंभव। ठीक अच्छे निश्चित भाव में यही स्थान रही शर्त पूरण करूँ। यही सब प्रसंग रही। एतिक कही आज विरति नौची। जय जगन्नाथ।